एटम्स में पढ़ा था बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट। बोर का जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है उसका फॉर्मूला क्या है? कि F electrostatic is equal to F centripetal. That means kz e square upon r square is equal to mv square by r. ठीक है, so this is the formula of Bohr's first postulate. कर लिया जॉयल? ओके and the formula of Bohr's second postulate, what is that? mvr equal to mvr is equal to nh upon 2 pi. nh upon 2 pi. Okay, mvr equal to nh upon 2 pi, and by using these two formulas we can derive the formula for radius of the orbit and velocity of electron in a particular orbit. So the formula for radius of nth orbit, will be Rn is equal to 52.9 n square by z picometer. Picometers, correct. And then the velocity of electron in nth orbit inside the atom, Vn is equal to कितना आया था? 2.1 into 10 raised to the power 6 z upon n meter per second. Z upon n meter per second. Great. तो आई थिंक हम लोगों ने यहीं तक किया है अभी तक. सो वी हैव यूज्ड बोर्स फर्स्ट एंड सेकंड पॉस्टुलेट टू ड्राइव दीज फॉर्मूलाज. ओके, व्हाट इज n? Orbit. n is the orbit number. n is the orbit number. Fine. What is z? Atomic number. Z is atomic number. And what is m? Mass of the electron. M is the mass of electron. What is v? Velocity of electron. ऊपर लिखा गया तो we don't have to write it, तो forget about it. What is h? Planck's constant. h is Planck's constant. अच्छा, आप लोगों की प्री बोर्ड्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं स्कूल में? बताया स्कूल वालों ने? नहीं, अभी तो सर हाफ ईयरली भी नहीं हुआ. अच्छा, हाफ ईयरली भी नहीं हुआ है. ठीक है, अब तो सीधा प्री बोर्ड से होंगे. ओके, कुछ तो सुनने में आ रहा है. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर. लेट अस लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक शुड बी बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट, बट बिफोर डूइंग बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट वी नीड टू टॉक अबाउट एनर्जी. तो आप लोग पढ़ोगे अब एनर्जी के बारे में. तो लिखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in Bohr's orbits. Energy of electron in Bohr's orbits. This is a very, very important topic of the chapter atoms. अच्छा, आप लोग ये चेक कर रहे हो अपने एंड पे कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं जो कि कट चुके हों? चेक किया है किसी ने? No, sir. या यू आर रिलाइंग ऑन मी कि आपने देख लिया हो? ठीक है, ओके. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट्स. तो एनर्जी हमने पढ़ा है, दो टाइप्स की एनर्जी होती है. कौन कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना. कन्वेंशनली अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी दो ही टाइप की पढ़ते हैं. तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या स्टेशनरी है? घूम रहा है. तो बोलेंगे द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, इन द सर्कुलर ऑर्बिट, the revolving electron in the circular orbit has two types of energies. The revolving electron in the circular orbit has two types of energy. The first one is kinetic energy. Kinetic energy किसकी है ये? इलेक्ट्रॉन की. Electron. And the second one is Potential. potential energy. What is kinetic energy?
Kinetic energy is the energy due to kinetic energy, due to motion, right? Due to velocity or due to speed. So does the electron have some speed or velocity? Of course it has. So yes, kinetic energy has to be there. Now, what is our understanding of potential energy? What exactly is potential energy? Potential energy का definition क्या होता है? Potential energy सुनते ही दिमाग में आता है बच्चों के MGH. तो क्या ये MGH है? MGH नहीं है ये. What is MGH? MGH is gravitational potential energy. ठीक है? Yes, sir. So this is not MGH. This is something else. This is electrostatic potential energy because electron is bound under the attractive force of the nucleus. So this potential energy is which one? This is electrostatic potential energy. So please write in the bracket electrostatic potential energy. ये electrostatic potential energy हमने पढ़ी है chapter 2 के अंदर, याद है? Chapter 2. So we have studied about this. हाँ, ये इसका फॉर्मूला होता है ना, U is equal to K Q1 Q2 over R. Yes. Yes. हम चैप्टर 2 में पढ़ के बैठे हैं. ओके, तो एक एक करके दोनों को निकालते हैं. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये. लेट्स सी. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी. Whose kinetic energy we're talking about? Electron. Kinetic energy of the electron, yes. And whose potential energy are we talking about? Electron. इलेक्ट्रॉन ही लगता होगा बोलने के लिए तो, बट ऐसा नहीं होता. पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक पेयर के लिए होती है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस पेयर. पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस पेयर. ओके, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? एवरीबॉडी नोज इट. हाफ mv स्क्वायर. Half mv square. Half mv square. Fine, and we are done. That's it. इसमें हम क्या कर सकते हैं? The best that we can do is we can use Bohr's first postulate to just modify it a bit. Bohr's first postulate, what is the formula given by Bohr's first postulate? What is it? K Z upon R square is equal to mv square. mv square. So यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? यहाँ पे R, we can cancel one R here. mv square मिल जाएगा. Exactly, and उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा mv स्क्वायर की वैल्यू आ रही है k z e स्क्वायर ओवर r, and we'll just plug it over there. So we'll get kinetic energy is equal to कितना आएगा? k z e स्क्वायर 2r. Exactly, ये आपको याद करना है. Kinetic energy किसकी है? Kinetic energy of electron. So kinetic energy of the revolving electron is half mv square, and when we use Bohr's first postulate, we get k z e square upon 2r. This is something that we must try to learn. K z e square upon 2r. So basically the idea is you have to express kinetic energy of electron in terms of the atomic number of the particular element as such. Okay, what is Z? Z is atomic number. Z is atomic number. Fine. So this is the formula of kinetic energy of electron. Now let us move to which energy? Potential energy. Which potential energy? Electrostatic potential. Electrostatic potential energy किसकी? Electron have a nucleus pair. Electrostatic potential energy of electron and nucleus pair. Electrostatic potential energy का सिंबल क्या होता है? बड़ा U. Yes sir. और फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R, है ना? कूलम्स लॉ के अंदर बस आप R स्क्वायर की जगह R लिख देते हो तो you get the formula of electrostatic potential energy. ठीक है? Yes sir. Okay. Now we need to substitute the values of Q1 and Q2. Now keep in mind, because electrostatic potential energy, it is a scalar quantity, so we need to be putting all the proper signs over there. Sign is important, है ना? Plus and yes. Minus sign is important. Negative. नेगेटिव आएगा. नेगेटिव तो आना भी चाहिए क्योंकि एक बाउंडेड सिस्टम है, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो यहाँ पे बाउंडेड सिस्टम में नेगेटिव आना चाहिए. तो बेसिकली यहाँ पे चार्जेस कौन से हैं? इफ यू टॉक अबाउट, let us say this is the orbit. This is the orbit in which who is revolving? Electron is revolving in this orbit. And what is this? This is the nucleus. And how much charge does the nucleus have? Positive Z. Yes. Positive Z. So we'll say कि Q1 कितना है? Positive Z. Z. And Q2 कितना है? Negative E.
minus Yes, is. sir. Yes, Okay. yes. So let us put all of this over there. So you'll get therefore u is equal to, ये minus e क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, So electron. इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है ना, माइनस 1.6 10 to the power minus 19 कूलम इस वजह से. ओके, तो ये आ जाएगा k इंटू जेड ई इंटू माइनस ई ओवर आर. ये हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पेयर. सो हाउ मच इज इट? u इज इक्वल टू माइनस k z e square upon r, and that's it. Okay. Yes, sir. Yes. What is this? This is nucleus. Nucleus. And what is this green thing? Orbit. Orbit. And what is the shape of the orbit? Circular. Circular. Orbital. Orbit is circular, and orbital is like a cloud. Okay. Yes, sir. Yes. Right. So topic क्या चल रहा था? Topic चल रहा था हमारा energy of electron in Bohr's orbits. Very important. Now, if we add, so this is very basic actually. Kinetic energy लिया, kinetic energy निकाल दिया, potential energy निकाल दिया. अब कौन सा potential energy? Gravitational. Electrostatic potential. हाँ, ध्यान रखना इसको. यार कोई आया क्या? Ask me, sir. ठीक है, ठीक है. मैंने टाइम 9:15 का बोला था या 9 बजे का बोला था? 9 ही बोला था. ठीक है, ठीक है. Okay. Now, if we add both of these energies, we will get the total energy. So, अब लिखो total energy. Total energy किसकी? Electron. Electron. Even though जो potential energy है वो due to the electron nucleus pair है, but हम बात करते हैं total energy of electron की ही. Total energy को represent करने के लिए हम symbol लेंगे capital E या TE ले लेंगे. चलो T या ठीक है capital E ले लेते हैं. कैपिटल ई सिंबल लेंगे हम टोटल एनर्जी के लिए, तो आप लोग कंसिस्टेंटली कैपिटल ई ही लेना. ऑलराइट. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इज टोटल एनर्जी? इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी. Energy and electrostatic potential. बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस यू ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पेयर. अच्छा, आप लोगों के स्कूल में खत्म हो गया क्या सिलेबस फिजिक्स का? No, sir. Wave optic शुरू. ठीक है, दैट्स ग्रेट. तो E इज इक्वल टू ले देंगे के ई प्लस यू. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है हमेशा, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कितना आया था आपके पास? के Z is Let E upon square 2. by 0.2 r. और यहाँ पर U नेगेटिव आया ना? Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव क्यों आया? ये नेगेटिव आया है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से. ठीक है, Electron का charge है. तो देखो इंपॉर्टेंट, यहाँ देखो माइनस साइन इंडिकेट्स दैट. Bound. हाँ, बाउंडेड सिस्टम, एब्सोल्युटली. माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड. Minus sign indicates that electron is bounded under the attractive influence of क्या? Yes. Nucleus. Minus sign indicates that electron is bounded under the attractive influence of nucleus. तो ये जो माइनस साइन है, इसके बारे में एनसीईआरटी बोलती है स्टेबल प्लस बाउंडेड सिस्टम को इंडिकेट करता है. स्टेबल प्लस बाउंडेड सिस्टम. तो ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज द नेगेटिव साइन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सिग्निफाई, तो यू शुड जस्ट से इट इंडिकेट्स अ स्टेबल एंड बाउंडेड सिस्टम. Which system are we talking about? We're talking about the electron nucleus system as such. Stable and bounded system. क्या U का नेगेटिव आना अच्छा है खराब है? अच्छा है. इट इज अ गुड थिंग. इसी वजह से सारा का सारा जो मैटर है, इट एग्जिस्ट्स इन द शेप दैट वी सी इट. ऑलराइट, सो लेट अस पुट इट ओवर हियर. सो व्हाट इज U? U इज माइनस के जेड. Z Z is square by ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? K Z square by R. ब्रैकेट में क्या आएगा? हाफ half माइनस. minus 1. व्हाट इज हाफ माइनस 1? माइनस हाफ. Half. सो टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है. Yes, वर्थ sir. नोटिंग, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आ रही है. यानी कि कौन कौन सी एनर्जी नेगेटिव आ रही है?
electrostatic potential and total energy. बिल्कुल, this is again very important. Note, यानी कि गलती से भी हमको टोटल एनर्जी पॉजिटिव नहीं बोलनी इस चैप्टर के अंदर. टोटल एनर्जी किसकी? Electron. Total energy of electrons revolving inside an atom is negative, and this negative sign again indicates a stable and bounded arrangement of electrons. Total energy of electrons revolving inside an atom is negative. Okay, लिख लिया? Yes, sir. Yes. Very good. ठीक है, तो एक बार जरा समराइज करते हैं इस डिस्कशन को. तो लिखो समरी. तो यार इस डिस्कशन की समरी हमारी ये है कि हमने 3 चीजें निकाली हैं. काइनेटिक एनर्जी के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r. कोशिश करो कि हाथों हाथ याद कर लो, बहुत ही सिंपल से हैं. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय 2 ई स्क्वायर अपॉन 2r. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय अपॉन. ठीक है, इस पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई रहती है, तो इसको अच्छे से समझ लो. काइनेटिक एनर्जी इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन r, एंड टोटल एनर्जी इज हाउ मच? माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर बाय 2r. नाउ यू वुड नोट हियर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्या हम देख पा रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव है. यस है ना? पोटेंशियल का भाई ये, हाँ, पोटेंशियल का हाफ है. तो देखो ये चीज तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और ये तो काइनेटिक एनर्जी है. तो हमने क्या निकाले? हमने निकाली रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. हाँ जी, लिख लो इसको, ये याद करना है. रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का है सब कुछ यहाँ पर. रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. बहुत बढ़िया. एंड अगर हमने इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया होता तब ये चीज आ जाती है हमारे पास, राइट? यस सर. तो E इज इक्वल टू u/2 या माइनस u/2? u/2. आपको ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं. E इज इक्वल टू माइनस के ई, E इज इक्वल टू u/2. वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. बोथ ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ फॉर्मूले याद नहीं करने, लगाना कैसे वो भी समझना है. So this is the relation between it is evident कि this is the relation between total energy and potential energy. तो E is equal to minus ke and E is equal to u upon 2. For all orbits. For all orbits. These formulas are valid for all the orbits that we will be seeing in a particular atom. चले आगे. ठीक है. अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, E is equal to minus k z d square upon 2r, इस पर थोड़ा सा वर्क करते हैं. तो लिखो we know that E का फॉर्मूला क्या है ऊपर? माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r. माइनस आया कि नहीं आया? आएगा सर. माइनस है. ठीक है. माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? स्टेबल और बाउंडेड सिस्टम. बिल्कुल. E इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r. ठीक है, एक काम करो, इसके अंदर आप यहाँ पे लगा दो, इसको ऐसे लिखो, E इसको कर दो n इज इक्वल टू माइनस के, तो के है कांस्टेंट है, z तो एक नंबर होता है करस्पॉन्डिंग टू एनी एटम, एंड ई स्क्वायर अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा Rn. तो हम बात ये बोल रहे हैं कि फॉर nth ऑर्बिट. अब हम धीरे धीरे इसको n के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. फॉर nth ऑर्बिट तो हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ r के वहां पर लगा दिया n का सब्सक्रिप्ट, और सिमिलरली हमने E के लिए लगा दिया n का सब्सक्रिप्ट. तो En इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r. नाउ डू वी नो द फॉर्मूला ऑफ Rn? You know, yes 52.9 n n square square by z picometers. picometer. इसको हम यहाँ पे कर देते हैं सब्स्टिट्यूट. तो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर, we'll get something like this. En is equal to minus
kz e square upon 2 into 52.9 n square upon z picometers. Now there are a lot of constants over here, and what are they? The constants are, because substituting values of standard constants. अभी हम किस चीज के फॉर्मूले पे वर्क कर रहे हैं? एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, उस पे वर्क कर रहे हैं. टोटल एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम ये सब पढ़ने के बाद ही हम बोर के थर्ड पॉस्टुलेट को पढ़ पाएंगे. यानी कि ये तो बात साफ हो रही है कि बोर का थर्ड पॉस्टुलेट विल कंसर्न अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है? यस सर. यस सर. पहला वाला क्या बोलता था? पहला वाला वो था जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. क्यों घूमते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस जो है उन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है. दूसरा क्या था? दूसरा था कि ऑर्बिट स्पेशल है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी यूज नहीं करते, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं उनको. और एक और चीज क्या बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्वांटाइज रहता है, इट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. और थर्ड पॉस्टुलेट तक पहुंचने की तैयारी हो रही है. वी आर डूइंग सम ग्राउंड वर्क टू रीच थर्ड पॉस्टुलेट. और ये तो क्लियर है कि थर्ड पॉस्टुलेट मस्ट बी अबाउट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. टोटल एनर्जी. यस, और आप लोगों को पता भी होगा शायद, यू विल सी इट शॉर्टली. ओके, यहाँ पे कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं? व्हाट इज के? 9 into 10 to power 9 9. into 10 के बाद 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये एक्चुअली के का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के? 1/4 pi epsilon. 1/4 pi epsilon naught. ठीक है, ठीक है. व्हाट इज ई? ई इज -6. 6 to 10 to power 9 minus 90. ठीक है. एंड व्हाट एल्स? एंड आई थिंक दैट्स इट. ठीक है, तो अगर हम इनको वहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि 52.9 और 2 भी कांस्टेंट्स ही हैं, और पिकोमीटर का जो फैक्टर है दैट विल गेट अरेंज्ड, तो हमारे पास बचेगा क्या? मतलब कांस्टेंट के अलावा क्या बचेगा? ये देखो, ये वाला z ऊपर चले जाएगा, ये वाला z और ये वाला z ऊपर जाके बन जाएगा z स्क्वायर, राइट? Yes sir. और एक ये रहा आपके पास n स्क्वायर. तो क्या बचेगा आपके पास अपार्ट फ्रॉम अ कांस्टेंट? z स्क्वायर upon n square. करेक्ट. तो आपको मिलेगा therefore En is equal to, नेगेटिव साइन आएगा या चले जाएगा? इट विल बी देयर. Yes sir. माइनस z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे जो आता है वो तुरंत याद करना है हमको. 13.6 सिंपल. ठीक है? Yes sir. सब कुछ डाल के सॉल्व करने के बाद आता है हमारे पास ये. और इसकी एज वी डिस्कस अर्लियर कि इन मॉडर्न फिजिक्स द एनर्जी इज नॉट दैट लार्ज, तो वी यूज EV राइट एज द यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है? ठीक है. Yes sir. तो यहाँ पर जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या लिया हमने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, EV लिया. EV. और ये हमने डुअल नेचर के अंदर. ठीक है, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी वाले फॉर्मूले से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ब्रेक होते हैं. इसी का हमको इंतजार था अभी तक, तो ये हमारे पास मिल गया है. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू इज, एज वी ऑलवेज डू, विल सब्स्टिट्यूट z is equal to 1. Why? Because Bohr's model is primarily about hydrogen. Hydrogen compounds and hydrogen compounds. For hydrogen atom. For hydrogen atom, if we substitute z equal to 1, what formula do we get? En is equal to minus 13.6 upon n square EV, right? So please give more importance to this formula. इसके पूछे जाने का likelihood काफी कम है, इसका काफी ज्यादा है. तो this is the formula for what? This is the formula for total energy of electron in the nth orbit of hydrogen atom, right? Yes sir. देखो कि एक्सप्रेशन फॉर, क्या बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? No sir. No sir. एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की ही है, इन द nth ऑर्बिट ऑफ कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम. ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मूला कभी देखा है पहले? Yes sir. लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है. और जिनको नहीं लग रहा है वो याद कर लो इसको. This is very very important. En is equal to minus 13.6 upon n square EV. Now as we always do, we'll try putting some numbers here and see what data we get. So put n equal to 1. What is n equal to 1? N equal to 1 is ground state, याद है? Yes sir. Yes sir. Yes sir.
तो अगर n को हम डालते हैं 1, ग्राउंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे E1. ये E1 क्या चीज है? ये है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, राइट? यस सर, कितना आ रहा है? -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये याद करना है आप लोगों को, ठीक है? ये सारी की सारी कहानी चल रही है किसके लिए? चल रही है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको कम से कम 4 ऑर्बिट का याद हो। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4 का याद हो डेटा। किस चीज़ का डेटा? एनर्जी का, ठीक है? तो याद कर लो हाथों हाथ। n = 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बताया था ना? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. और अगले वाले को क्या बोलेंगे? सेकंड Second एक्साइटेड स्टेट। excited state. And excited state. And n = 4 is, as you know, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। Third excited state. State. ठीक है, अब जरा डेटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर E2 कितना आ जाएगा? माइनस का 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर। यस सर, 2 स्क्वायर। So this is minus 13.6 upon 4. So how much will this be? This will be minus 4 3 are 12, 4 are 16. 3.4। Minus Yes. 3.4 EV आ रहा है? Yes. यस सर, Great. ये कौन से एटम की कहानी चल रही है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन सारी कहानी एटम। हाइड्रोजन के लिए चल रही है। Hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के लिए। yes. अगर हम निकालते हैं n = 3 डालते हैं, तो we just have to put n = 3 over here. तो यहाँ पे क्या आएगा? E3 is equal to minus 13.6 over 9. This is 3. Yes, sir. So this is minus 13.6 upon 9, and this will be minus 1.51 EV. Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो what is the energy for n = 1? Minus 13.6 EV. Then it became minus 3.4 EV. अचानक से बदली। Then it became minus 1.51 EV, and E4 will be minus 13.6 upon 4 square, यानी कि ये 0 से डेसिमल नंबर आएगा कंप्लीटली। सो दिस इज minus 13.6 upon 16, and this is minus 0.85 EV. ठीक है, आपको याद करनी है वैल्यूज ये। अगर आपको याद होंगी तो आप सवाल तुरंत कर सकते हो, याद नहीं होंगी तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, तो एक काम करते हैं, इनको दोबारा लिखते हैं। लेट अस राइट देम अगेन। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? 3.4 Minus. माइनस 3.4 एक तो माइनस से ही शुरू करना है। minus 13 13.6. EV. E2 Minus 2.4. हाँ EV। EV. तुम लोगों को आदत ही नहीं पड़ी अभी इतना टाइम से पढ़ते पढ़ते फिजिक्स की, यूनिट के साथ ही खत्म करते हैं, नंबर पे खत्म कभी नहीं करना जब तक यूनिट ना हो। माइनस 1.5 EV. बहुत जोर लगा के E4 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Yes, ये sir. सारा वैल्यूज याद करनी है, तभी होंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, what do we call n is equal to 1? n equal to 1 is, Ground state. this is ground state, and this is first excited state, second excited state, and third excited state. And we're talking about this again and again क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर बातें इसी लैंग्वेज में होने वाली हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज n is equal to 2. This is n is equal to 0. n equal to 1. यहाँ पे 0 से कुछ नहीं होता। n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4. तो ये जो डेटा है, जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे, मतलब ऐसे जाने पर क्या एनर्जी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज कर रही है। बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रखना है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद कर रखा है, उसके अंदर आपने याद कर रखा है कि एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर एनर्जी इज इंक्रीजिंग। Increase. यानी कि जैसे जैसे हम जाएंगे न्यूक्लियस से दूर, जैसे जैसे हम जाएंगे न्यूक्लियस से दूर, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की, यानी कि स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। एनर्जी इज इंक्रीजिंग।
तो कौन से ऑर्बिट में सबसे ज्यादा एनर्जी है यहाँ पर? फोर्थ ऑर्बिट में। फोर्थ ऑर्बिट में सबसे ज्यादा एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि 10 एनर्जी, किसकी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की। एंड मोर प्रिसाइजली यू शुड राइट टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन goes on increasing in as we move towards outer orbits, as we move away from nucleus. Total energy of electron goes on increasing as we move away from nucleus. ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखते हैं आगे। अब जरा देखते हैं ध्यान से कि ना, अब बात ये है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो ऑल्सो। लिखो, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो हमने ऊपर डिस्कशन किया है ना, उसको हम एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो। So we will make some straight lines, horizontal straight lines. So this, and then this, and then another line, and then another line. So we have made 4 lines corresponding to n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, and n is equal to 4. This is just a representation to understand the thing. इसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी है E2, ये है E3 और वो है E4। क्या हमको वैल्यूज याद हो चुकी हैं? Yes, sir. E1 कितना था? Minus -30.6 30.6 EV. E2 minus 3.4 EV. minus 1.51 EV. 1.51 EV. minus 0.85 EV. 85 EV. ठीक है, और ये सब चल रही है किसकी कहानी? ये चल रही है हाइड्रोजन आटम के लिए। ये बताओ, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? E2 बड़ा है। क्या सोच रहे हो अभी? ऊपर क्या डिस्कस करके आए हैं फिर हम लोग? तुम लोग इतना सोच के अभी तो लिख के आए कि बढ़ रही है एनर्जी यहाँ पे यार। यस सर। तो कौन बड़ा है सबसे? सबसे E4। हाँ, E4 बड़ा है। E4 ग्रेटर देन, लिख लो इसको, E4 ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1। देखने में लग तो बड़ा ये रहा है E1, बट नेगेटिव है ना? हाँ, बट नेगेटिव है। तो जो जितना बड़ा दिख रहा है नेगेटिव नंबर की वजह से वो उतना ही छोटा है। और इसको अगर विजुलाइज करना है तो नंबर लाइन बना सकते हो। इफ यू ड्रॉ अ नंबर लाइन लाइक यू डू इन मैथमेटिक्स, दिस इज अ नंबर लाइन। सारे के सारे नंबर्स आएंगे आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। सो 0 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -0.85, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1.51, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3.4 एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 13.6। हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा कौन है? ये वाला, ठीक है ना? यस सर। दिस इज फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, दैट्स व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर. This corresponds to n equal to 1. This is n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4. All right. चले आगे, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो ये बताओ कौन से वाले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम है? N1 की। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ऑर्बिट इज क्या? मैक्सिमम? Minimum. It is least, and that is the reason it's called ground state. This is why n equal to 1 is called कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट। Ground state. ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट को ग्राउंड स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है लीस्ट, मिनिमम होती है इसकी एनर्जी। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जब भी उसकी एनर्जी बढ़ेगी,
तो वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नीचे ऊपर जाएगा। जब भी नहीं, ऊपर जाएगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, जो बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा ना, अप द लैडर। हाँ हाँ यस यस सर। तो जब भी किसी एक्सटर्नल एजेंट से सप्लाइड एनर्जी को वो एटम एब्जॉर्ब करेगा, भाई ये सब क्या है? ये सब एटम के अंदर की कहानी को विजुलाइज करने का तरीका है। जब भी एटम के अंदर एटम को आपने एनर्जी दी, मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। यस सर यस आपने क्या किया, देखो ध्यान से, यही है आने वाला है बोर्ड का थर्ड पोस्टुलेट। आपने क्या किया, आपने ये बेसिकली क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक एटम के अंदर की दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। एटम के अंदर की दुनिया है ये, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर ये एटम के अंदर की दुनिया है। अब आपने क्या किया, आपने उस एटम को दे दी हीट, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने उसको हीट दे दी। अगर आप उसको हीट दोगे तो क्या होगा? ऐसे दे दिया आपने उसको हीट, यहाँ से आपने उसको दे दी हीट। देखो ध्यान से, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देते हैं ना लाइट, यस सर ये हीट एनर्जी दे दी आपने इसको। तो अगर हीट एनर्जी दोगे, अब मान लो आपने कितनी एनर्जी दी, आपने दी इसको 10.2 EV। कितनी? 10.2 eV बिल्कुल। 10.2 तो मान लो कि आपने एनर्जी सप्लाई कर दी, आपने एनर्जी सप्लाई कर दी, एनर्जी सप्लाइड टू द एटम। इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ था? ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट में। तो हमने लेट कर लिया, लेट एनर्जी सप्लाई टू द एटम इज इक्वल टू हाउ मच? 10.2 EV। 10.2 eV अब यहाँ पे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, वो बैठा हुआ था n इज इक्वल टू 1 में। ये था आपका इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी यहाँ पर, क्या थी? -13.6 eV बिल्कुल। और कितनी मिल गई उसको? सर 10.2 eV तो इसकी नई एनर्जी निकालते हैं, न्यू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगी -13.6 प्लस क्या? 10.2, 10.2 eV यानी कि माइनस का 3.4 आ गया। तो यस सर। ठीक है, यानी कि डेटा मैंने जानबूझ के 10.2 EV लिया है जिससे कि वो मैच कर जाए अगले पे, ठीक है। यस सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ था? ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी या नहीं थी? थी। कितनी थी? -13.6 -13.6 eV ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एटम को गर्म किया। हमने एटम को गर्म करके कितनी एनर्जी दी थी उसको? 10.2 eV 10.2 EV। एनर्जी बाहर से आई, एनर्जी किसने एब्जॉर्ब करी? इलेक्ट्रॉन ने। इलेक्ट्रॉन ने तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, क्या प्लस क्या? -13.6 प्लस 10.2 यानी कि -3.4। और -3.4 तो एक रटा रटाया फिगर है हमारे लिए, है ना? Yes, sir. into यानी energy कि ये कहाँ जाके गिरेगा? second orbit हाँ जी, यानी कि ये सेकेंड ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा। बट क्या ये एक्टिविटी इलेक्ट्रॉन को पसंद आई कि नहीं आई? सवाल ये है। नहीं है। नहीं आई, इलेक्ट्रॉन को नहीं आई। एग्जैक्टली देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपको ये बनाना है कि इलेक्ट्रॉन्स विश टू रिजाइड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स विश टू रिजाइड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि वो न्यूक्लियस के पास रहें। इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं चाहते कि वो दूर रहें, क्योंकि ये ना ऊपर चला गया, ऊपर जाने पे इसके जीवन में आएगी अनस्टेबिलिटी, ये नहीं चाहता है ये। तो आप बोलो कि दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? ट्रांजिशन किया फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। दिस इज कॉल्ड क्या? Transition of transition electron. of electron ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू Higher energy level. higher energy level या हायर टू लोअर हुआ है, लोअर टू हायर हुआ है? Lower to lower to higher. higher लोअर टू हायर हुआ है। और क्या ये अच्छी बात है या खराब बात है इलेक्ट्रॉन के लिए? खराब 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 बात। stability बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखेंगे कि, और इसको हम एक्साइटेशन भी बोलते हैं। दिस इज रेफर्ड टू एज एक्साइटेशन। ये वर्ड्स को अच्छे से समझ लो। दिस इज रेफर्ड टू एज व्हाट? Excitation. एक्साइटेशन। Excitation. बिल्कुल। तो कौन हुआ एक्साइट? इलेक्ट्रॉन। Electron. और एक्साइट होके कहां से कहां पहुंच गया? n=1 से n=2 में पहुंच। and तो n=1 का नाम था ग्राउंड स्टेट, है ना? Yes, sir. yes
और वो कहाँ पहुंच गया n equal to 2 में. So this is the first excited state. I hope कुछ clarity आ रही होगी. Yes sir. ठीक है. Yes, sir. तो मेरे को ये बताओ कि ये कौन से एटम की बात हो रही है? Hydrogen atom. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ था ओरिजिनली? Sir, N1 ground state. ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ था n equal to 1 में. तो क्या वो स्टेबल था, उसका जीवन स्टेबल था या अनस्टेबल था? वो स्टेबल स्टेबल था. बढ़िया था उसका जीवन. अब बाहर से कितनी एनर्जी आई? 10.2 EV. 10.2 eV. उसको उसने एब्जॉर्ब करके वो कहाँ छलांग मार रहा है? First excited state into. उसकी मजबूरी थी ये इलेक्ट्रॉन की. यानी कि दिस वाज अ स्टेबल रेल्म फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अनस्टेबल. क्या इलेक्ट्रॉन चाहता है यहाँ पे रहना? No sir. तो क्या होगा? तो कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर या माइक्रो सेकेंड्स के अंदर या उससे छोटी टाइम की यूनिट जो होती है, तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइफ टाइम. तो इलेक्ट्रॉन वो छोटा सा टाइम जो n equal to 2 में स्पेंड करेगा ना, उसे बोलते हैं लाइफ टाइम. वो टाइम बहुत छोटा है, बट इलेक्ट्रॉन को क्योंकि अनस्टेबल में चला गया वो लाइफ टाइम लग रहा है ना. लाइफ टाइम हम सोचते हैं कि लाइफ टाइम मतलब बहुत लंबा टाइम, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए वो छोटा सा टाइम भी लाइफ टाइम बोला जाता है. तो बोलेंगे कि इट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इलेक्ट्रॉन स्टेज वेयर? In the excited state. Yes. It is a time duration for which the electron stays in the higher energy state, which is also called excited state. समझ में आ रहा है? Yes sir. Lifetime, it is the time duration for which the electron stays in the higher energy state or excited state. क्या ये समय इलेक्ट्रॉन को पसंद आया? नो सर No sir. बढ़िया. अब जैसे ही ये समय खत्म होगा तो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा. बात समझ में आ रही है? Yes sir. देखो, once यस सर lifetime gets elapsed, the electron undergoes क्या? de-excitation. de-excitation होता है. और ये कहां से कहां जाएगा अब? N equal to 2 से N equal to 1. हाँ, एग्जैक्टली. यानी कि एनर्जी दोगे तो ऊपर जाएगा, एनर्जी छोड़ेगा तो नीचे आएगा. समझ में आ रही है? यस सर Yes. Once lifetime gets elapsed, the electron undergoes de-excitation and it jumps. कहां से कहां? First excited state से ground state. बिल्कुल. इस लैंग्वेज से फेमिलियरिटी बढ़ाते रहो, इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ इस लैंग्वेज को. एंड इट जम्प्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू Ground state. ग्राउंड स्टेट. तो पहले हुआ एक्साइटेशन, उसके बाद लाइफ टाइम बीता और क्या हुआ फिर? De-excitation. de-excitation. और ऐसा होने से क्या हुआ? उसके जीवन में क्या आई? Stability वापस से. बिल्कुल. Hence electron achieves stability. और इसका से बोलते हैं कि पूरा का पूरा आटम ही स्टेबल हो गया इसकी वजह से, क्योंकि आटम के अंदर की बातें चल रही हैं ये. Hence इलेक्ट्रॉन और आटम achieves stability. ठीक है, लिख लिया? Yes sir. बहुत बढ़िया. यानी कि if we provide energy to an atom, कौन सा फिनोमेना होगा? एक्साइटेशन या डी-एक्साइटेशन? Excitation. तो एक्साइटेशन occurs कब होता है ऐसा? जब हम एनर्जी प्रोवाइड एटम को करते हैं. एनर्जी सप्लाई करते हैं. प्रोवाइड करे तो. बिल्कुल. तो ये हो गया आपका इसका समरी है इस डिस्कशन का, कि इफ वी प्रोवाइड एनर्जी टू एन एटम द एक्साइटेशन फिनोमेना occurs एंड बताओ डी एक्साइटेशन क्या हम करते हैं या ऑटोमेटिकली होता है? ऑटोमेटिकली होना चाहिए. बिल्कुल. एंड once electron spends
lifetime in the higher energy state, it jumps to the lower energy state on its own या by external stimulation? On its own. On its own. बिल्कुल. जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या एनर्जी रिलीज हुई? Release. Energy release. जब ये नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर ऑब्जर्व. हाँ नीचे से ऊपर मतलब n = 1 से n = 2 गया या 3 गया या जो भी गया, यानी कि एक्साइटेशन जब होता है, किसका एक्साइटेशन? इलेक्ट्रॉन. तो एक्साइटेशन के टाइम पर एनर्जी का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. ठीक है. Yes, sir. और कब क्या होगा? De-excitation में रिलीज. बहुत बढ़िया. एनर्जी होती है रिलीज. ये है आपका बोर का थर्ड पोस्टुलेट. ये बताओ कि हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ने कहां से कहां पे की थी ट्रांजिशन? n = 1 से n = 2 में की थी, राइट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कितनी एनर्जी गेन की थी उसने? 10.2. 10.2 EV. 10.2 EV. जब वो नीचे आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? उतनी करेगा. Yes, sir. 10.2 EV. कि एनर्जी का जो डिफरेंशियल है वही तो जाएगा, तभी तो वो -13.6 EV पे वापस आ पाएगा. यानी कि जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उसमें से कुछ अपनी पॉकेट में रख लेगा क्या? नहीं, सब No, कुछ. sir. ठीक है. और ये जो एनर्जी निकलती है ना, ये एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो ये लिखो, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्या ये हमको दिखेगी? मे बी, मे नॉट बी. एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या? Electromagnetic radiation. बिल्कुल. तो कमाल की बात तो यही है कि अगर आप किसी एटम को हीट करते हो और उसका होता है एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, तो वो ऑटोमेटिकली फॉल बैक करता है अपने लोअर एनर्जी स्टेट्स में और उस प्रोसेस में क्या रिलीज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. Electromagnetic radiations. Energy in the form of electromagnetic radiations. These electromagnetic radiations could be UV, could be IR, could be visible. Let me write in that order only. Electromagnetic radiations like infrared, generally ये मिलती हैं infrared, visible light and ultraviolet. UV. हाँ. बोर का जो थर्ड पोस्टुलेट है उसका एक्साइटेशन से कोई लेना देना नहीं है. इट हैज गॉट टू डू विथ डी एक्साइटेशन. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. तो अब बोर का थर्ड पोस्टुलेट लिख लेते हैं. आई होप कि आप लोगों को समझ में तो आ ही गया कि कॉन्सेप्ट क्या है. तो नाउ लेट अस राइट बोर्स थर्ड पोस्टुलेट. सर ये जो सर जो लाइफ टाइम होगा सर उसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हायर एनर्जी लेवल पे तो सेम ही ऑर्बिट पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर वो वाले इलेक्ट्रॉन उससे ऊपर वाले में जाएगा? हाँ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली. ये जो हमारा बोर का मॉडल है ना, ये तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, राइट? Yes, sir. यहाँ पे इस पूरी कहानी में इलेक्ट्रॉन ही एक है. Okay, okay, sir. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है. जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो वहां पर उसको कोई मिलने वाला नहीं है, सब खाली पड़ा है. अच्छा ठीक है सर. ठीक है. Yes. अब हम देखते हैं बोर का थर्ड पोस्टुलेट. तो बोर का थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोलेंगे? हम बात करेंगे अबाउट डी एक्साइटेशन. नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ना, de-excitation ऊपर से नीचे. ऊपर से नीचे. ऊपर से नीचे यानी कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी? हायर एनर्जी से Higher lower. एनर्जी से. energy. थोड़ा सा दिमाग को खोलो अपने. हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी गिर रहा है वो. ठीक है. Yes, Yes, sir. sir. तो लिखो, whenever an electron makes a transition, whenever an electron makes a transition from क्या to क्या? From
हायर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी स्टेट टू lower energy Lower state. energy lower energy state. Whenever an electron makes a transition from higher energy state to lower energy state, it absorbs energy or releases energy? Releases किस फॉर्म में? electromagnetic radiation. यही है आपका बोर का थर्ड पोस्टुलेट. दैट्स इट. सब लोग हैं कि नहीं है? Whenever an electron makes a transition from higher energy state to lower energy state, it releases energy in the form of electromagnetic radiations. तो इसको एक छोटा सा डायग्राम बना के रिविजन कर लेते हैं. तो लेट्स मेक अ स्मॉल डायग्राम. मान लेते हैं कि ये एक एनर्जी स्टेट है और ये एक और एनर्जी स्टेट है. ये जो ऊपर वाला एनर्जी स्टेट है ना, इसको बोल दो ई हाई. इसको बोल दो ई लो. मैं वर्ड्स वही ले रहा हूँ, हाई और लो, जिससे कि आपको फॉर्मूला. इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां लेके जाना है इस पोस्टुलेट के अंदर हमको? हाई से लो या लो से हाई? High से low. हाई से लो. हाई से लो. तो देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन. ये हम लेके जाएंगे या अपने आप होगा? अपने आप अपने हाँ. आप होते हैं. अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया? हाई से लो. Higher से lower. हाँ, ये सब जो चल रहा है ये सब एटम के अंदर चल रहा है ना, एटम की बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है सब. Yes Yes sir. sir. तो इस तरीके से आप बना लो एक छोटा सा, जिससे कि आपको समझ में आ रहा है कि यार ये तो एटम के अंदर की कहानी चल रही है. ठीक है, तो ये आपके पास एटम है. ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है. ऐसे नहीं होता कि उसके अंदर स्ट्रेट लाइन बना रखी है हमने. तो जब ये इलेक्ट्रॉन वहां से वहां कूदा, तो यहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Radiation. रेडिएशन निकलेगी. ठीक है. Yes sir. Yes sir. इलेक्ट्रॉन जब कूदा कहां से कहां? हायर एनर्जी स्टेट से Higher से lower. लोअर एनर्जी स्टेट. तो उस प्रोसेस में क्या निकल रहा है? EM radiation. हाँ, ये क्यों निकल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैड अ बैगेज ऑफ एनर्जी हियर, द इलेक्ट्रॉन हैड एक्स्ट्रा एनर्जी, वही बाहर आ गया. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसके अंदर तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना. दुनिया भर की कहानी है उसमें. Yes sir. Yes. तो उस दुनिया भर की कहानी में हमको नहीं जाना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मार दो, और फ्रीक्वेंसी भी होगी ना इसकी कुछ. Yes sir. फ्रीक्वेंसी न्यू बोल दो. इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूद रहा है? Higher से lower. हायर से Energy लोअर. state. और उस प्रोसेस में क्या निकल रहा है? Electromagnetic radiation. बताओ, एनर्जी रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है? से release हो रही है. ई हाई बड़ा है कि ई लो बड़ा है? सर E high high. है. उसका नाम ही ई है, तो वही बड़ा है. ठीक है. सो दिस इज द हायर एनर्जी स्टेट एंड नीचे वाला इज द लोअर एनर्जी स्टेट. तो कितनी एनर्जी निकलेगी? एनर्जी कितनी रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज विल बी इक्वल टू, हाँ नहीं नहीं, वो तो High एग्जांपल था. minus E low. दैट वाज जस्ट एन E high एग्जांपल. हाँ, ई हाई माइनस ई लो. Yes sir. Yes yes. This is the energy released when the electron is making a transition from higher energy state to lower energy state. कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? No No. sir. तो ये हो गया, एनर्जी रिलीज हो गया ई हाई माइनस ई लो. अब ये जो एनर्जी है इस चीज को आप डेल्टा ई बोल दो. लेट्स कॉल इट डेल्टा ई. तो डेल्टा ई को हम बोल रहे हैं, डेल्टा ई सिंबल ले लिया हमने एनर्जी रिलीज के लिए. ई हाई माइनस ई लो. ठीक है. और ये क्योंकि ये एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो क्या हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसकी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, Yes sir. Yes sir. या फिर एच न्यू. तो हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेट कर देंगे, लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा E इज इक्वल टू क्या, एच सी बाई लैम्डा. डेल्टा E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. Lambda. ठीक है. और इसको ऐसे लिख सकते हो, और यू कैन राइट दिस एज डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू. व्हाट इज न्यू?
frequency. ऐसे नहीं बोलना ना, frequency of the EM radiation which is coming out. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और E high minus E low is equal to hc upon lambda. ठीक है? Yes, sir. E high minus E low is equal to hc by lambda. hc upon lambda. What is C? Speed of light. C is speed of light. C को speed of light की बजाय लिख लो, C की वैल्यू लिख लो सिंपल, 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. करेक्ट. एंड h का वैल्यू कितना होता है? 626 into 10 raised to the power minus 34 Joule seconds. ऑलराइट, सो इस तरीके से हमारा बोर का थर्ड पॉस्टुलेट भी फिनिश हो गया है. नाउ वी लुक एट सम क्वेश्चंस. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं. लिखो. So the first question is, what is the principal quantum number? What is the principal quantum number corresponding to nth excited state? What is the principal quantum number corresponding to nth excited state? क्या आएगा इसका आंसर? n+1. n+1 is correct. Yes. भाई हम जानते हैं ना कि n equal to 1 या n equal to 2 कहना चाहिए. n equal to 2 is nothing but it is the first excited state. I think ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था. Yes. और n equal to 3 क्या होता है? It is the Second second excited state. तो यहाँ पर अगर nth excited state है तो वहां पे क्या आएगा? n+1. n+1. So n+1 is the answer to this question. Okay. आगे बढ़ते हैं. हमको दे रखा है एक एनर्जी लेवल डायग्राम. देखो, द फिगर शोज एन एनर्जी लेवल डायग्राम for a hypothetical atom. The figure shows an energy level diagram for a hypothetical atom. एक काम करना, ऊपर जाके ना वापस जाके थोड़ा सा ये जो डायग्राम है इसको आप बोल दो एनर्जी लेवल डायग्राम. दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम. The figure shows an energy level diagram for a hypothetical atom. So there are 4 lines given to us like this. This is A.
This one is B. This is C. D and E. ये जो A, B, C, D, E हैं, ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस हैं. A, B, C, D, E are transitions of electron. This one is 0 eV. This one is -1 eV. This is -3 electron volt, and this is -10 electron volt, -10 eV. तो बताओ A वाले के अंदर हाई से लो है या लो से हाई है? सर हाई से लो है. हाई से लो. B के अंदर हाई से लो, C हाई से लो, D और E भी हाई से लो, राइट? यस सर. Yes, यानी sir. कि ये तो क्लियर है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? बोर्स थर्ड पोस्टुलेट. Was third postulate. Yes, sir. ठीक है, अपने दिमाग में सेट कर लो इस बात को कि अगर इलेक्ट्रॉन कूद रहा है ऊपर से नीचे तो बोर का थर्ड पोस्टुलेट लगेगा और कुछ नहीं लगेगा. व्हाट इज बोर का थर्ड पोस्टुलेट? जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कूदता है हायर लो एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट आता है तो एनर्जी रिलीज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में. ठीक है, और फॉर्मूला कहता है E high minus E low is equal to hc by lambda. This is a simple formula. E high minus E low is equal to hc by lambda. सी बाय लैम्डा. कैसे आया? बाय एनर्जी कंजर्वेशन आया भाई. एनर्जी का जो डिफरेंशियल है वो निकल गया बाहर. दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन ओनली. ओके, तो ये सवाल किस टॉपिक का है? बोर्स थर्ड पोस्टुलेट. इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं पेपर के अंदर. 3-3 नंबर के आते हैं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं ये. तो समझते हैं इसको कैसे करना है. पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है. तो क्वेश्चन ये है कि विच ट्रांजिशन, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर कितनी ट्रांजिशंस हैं? 5 दिखा रखी हैं. 5 ट्रांजिशंस दिखा रखी हैं. इन पांचों ट्रांजिशंस के अंदर क्या चीज निकलेगी एटम में से बाहर? ईएम रेडिएशन. EM रेडिएशन निकलेगी, है ना? और Yes, sir. EM रेडिएशन के पास वेवलेंथ होगी. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बताओ कौन सी ट्रांजिशन है जिसके अंदर निकलेगा 620 नैनोमीटर्स का फोटोन. विच ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन एमिशन ऑफ फोटोन. भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब जिसको बोलते हैं फोटोन, है ना? फोटोन. यस सर. Which transition will result in emission of photon of wavelength 620 नैनोमीटर. ये 620 नैनोमीटर हमें दिखता है कि नहीं दिखता? हमें नहीं दिखता. नहीं दिखता है. दिखता है हमको ये. अरे हमारा जो रेंज है वो क्या है? 400 से 700 है ना? यस सर. ये वायलेट का होता है और ये रेड का होता है. ये भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली. तो Yes, दिस विल बी ऑरेंज रेड काइंड ऑफ, है ना? येलो ऑरेंज रेड का कॉम्बिनेशन होगा जैसे. ठीक है, तो ये दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता दिखता है सर. दिखता है. ये किसको बिलोंग करता है? विजिबल लाइट को. ओके, तो यार सवाल बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है. यार पूछ रहा है कि कौन सी वाली ट्रांजिशन है. आपको ट्रांजिशन आइडेंटिफाई करनी है. आपके आंसर में आएगा ट्रांजिशन बी या ट्रांजिशन ई. इस टाइप से आप रिपोर्ट करोगे कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद. आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजिशन में निकलेगा फोटोन जिसका वेवलेंथ कितना होगा? 620 नैनोमीटर. और हमको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? मुझे रखा है एक एनर्जी लेवल डायग्राम किसी हाइपोथेटिकल आइटम का. ये जो वैल्यूज है यहाँ पे 0, -1, -3, -1 कभी देखी है आपने ऐसी वैल्यूज? हमने तो नहीं देखी पहले कभी. हमने कौन सी वैल्यूज देखी है? हमने देखी है -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, राइट? यस सर. Yes, वो हमारा sir. स्टैंडर्ड डेटा है जो हमसे एक्सपेक्ट किया था, याद हो. बाकी अगर उसके बियॉन्ड कुछ भी आएगा, डेटा विल बी गिवन टू अस. नाउ हाउ डू वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? सबसे पहले आपको क्या क्या काम करना है? आपको करना ये है कि आप सारी ट्रांजिशंस के लिए डेल्टा ई निकाल दो. लिखो डेल्टा ई ए, डेल्टा ई बी, डेल्टा ई सी. यानी कि हम सारी ट्रांजिशंस के लिए क्या निकाल रहे हैं कि कितनी एनर्जी निकलेगी. ठीक है, यस सर. Yes, sir. तो जरा मेरे को बताओ कि डेल्टा ई क्या होता है? ई हाई माइनस ई लो या ई लो माइनस ई हाई? हाई माइनस. हाई माइनस ई लो. ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या करेंगे? 0 -1 या -1 -0? 0 -1. तो कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट. अगला 0 -3 यानी कि
3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है डेल्टा EC 10 10 10 क्या EV। EV। डेल्टा ED 2 EV। 2 EV। 2 EV। यस कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। यस सर, आ रहा है डेल्टा सर। EE 9 EV। 7 इलेक्ट्रॉनिक 7 कैसे आ जाएगा? ये तो माइनस से जा रहा माइनस। है। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है आपको पांचों की पांचों ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है? डेल्टा ई। ठीक है यस यस सर। ये सवाल किस टॉपिक का है? बोर्स Bohr's थर्ड third पोस्टुलेट। तो लिखो यूजिंग बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। यूजिंग बोर्स थर्ड पोस्टुलेट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोर्स थर्ड पोस्टुलेट? डेल्टा ई इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। लैम्डा। ठीक है तो बताओ हमको क्या गिवन है लैम्डा का वैल्यू? यस सर 620। 620 नैनोमीटर्स। ठीक है तो बस एक काम करते हैं। देखो H पता है हमको, हाँ पता है। C पता है, हाँ पता है। लैम्डा पता है, हाँ पता है। तो HC और लैम्डा पता है, निकाल लेते हैं डेल्टा ई। जिससे मैच कर जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो देखो कैसे निकालेंगे। 6.626 10 की पावर -34 -34। जूल सेकेंड। C कितना होता है? यस। C 10 की 3 पावर into 10 8 की पावर 8 मीटर पर मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। और लैम्डा कितना है? 620 नैनो। 620 नैनोमीटर। 10 की पावर -9 मीटर। 9 मीटर। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। आप लोग फोन उठाए ना? तो यार ये तो बहुत ही अजीब सी कैलकुलेशन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस Yes. सर। अब ये कैलकुलेशन, अब हमको क्या करना है? एक सेकंड। हाँ तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको याद करना है, घर से ही याद करना है आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो देखो ध्यान से क्या ध्यान रखना है। अब देखो पंगा क्या है यहाँ पे। पंगा ये है कि इसको अगर हम सॉल्व भी करेंगे ना, देखो मीटर से मीटर काट दो, ये कट रहा है मीटर से मीटर, राइट? यस सर। और सेकंड। पर सेकंड ने सेकंड को मार दिया। यानी कि ये जो पूरा का पूरा आ रहा है इसकी यूनिट क्या आ रही है? आ रही है जूल। यस सर। ठीक है लेकिन हमारे पास जो 5 डेल्टा ई अवेलेबल है उनकी यूनिट क्या है? ईवी ईवी ईवी। यस सर। यानी कि Yes, हमको कन्वर्ट करना चाहिए इसको किस में? ईवी में, है ना? यस सर। तो 1 ईवी होता है, बताया था 1.6 10 की पावर -19 जूल्स के बराबर। 1 ईवी होता है इतने जूल्स के बराबर। अगर आपको आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है जूल में, अगर आप चाहते हो इसको ईवी में कन्वर्ट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 जूल क्या होता है? 1 जूल होता है 1/1.6 10 की पावर -19 ईवी के बराबर। यहाँ पे आपके पास इतने सारे जूल हैं, तो इतने सारे जूल को कन्वर्ट करने के लिए बस आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे या इससे डिवाइड कर दोगे, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो आपको क्या मिलेगा? देखो ध्यान से। डेल्टा ई इज इक्वल टू 6.626। आपको घर से याद करना है, लेकिन एग्जामिनर को पता नहीं लगने देना कि आपको घर से याद था। तो 6.626 10 की पावर -34 3 10 की पावर 8 नीचे आप कर दोगे 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड, क्योंकि हमने ये जूल्स को इलेक्ट्रोवोल्ट में जो हाँ बिल्कुल जूल्स में आ रहा था रिजल्ट, हमको चाहिए था किसमें? ईवी में। ये आया आपका ईवी यस के। सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो। अब देखो ध्यान से देखो। अब you will not want to do this calculation in the exam, right? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है, ये जो कैलकुलेशन है इसके अंदर h का वैल्यू है, इसके अंदर c का वैल्यू है, इसके अंदर e का वैल्यू है। देखो ना ध्यान से, ये क्या है? ये दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज स्पीड c, दिस इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो क्यों ना हम इसको घर से याद कर लें और सीधा वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। तो हम वही करेंगे। तो ये जो भी मैंने रेड में डाल रखा है, इस पूरे को सॉल्व करने पर जो आएगा वो आपको याद करना है सारे न्यूमेरिकल्स के लिए। वो होता है 1242 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन बाकी जो बचा हुआ है आपके पास। ठीक है यस सर।
Yes, आप- sir. तो आपने क्या याद कर लिया? आपने याद कर लिया एच सी अपॉन ई का वैल्यू। आपने याद कर लिया एच सी अपॉन ई का वैल्यू कितना? 12 42 10 12 42 10 की पावर -9। बस आपको याद करना। अरे रे एच सी अपॉन ई इज इक्वल टू 1242 10 टू द पावर -9। ओके, तो आगे वाले न्यूमेरिकल्स में जब भी आएगा तो जस्ट रिप्लेस दिस एंड गेट द आंसर। अब हमको क्या कर सकते हैं? ये क्या है? ये लिखा हुआ है 1242। इसको आप और सिंपल करने के लिए, क्योंकि यू जस्ट वांट अ बॉल पार्क फिगर, मतलब आप चाहते हो कि बस उसका नियर अबाउट पता लग जाए, क्योंकि इतना तो बहुत ज्यादा क्लोज तो है नहीं ये वैल्यूज, है ना, काफी फासला है इनके बीच में। तो आपको एक बॉल पार्क फिगर चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार ठीक है, ये तो कट गया, मानते हैं कि ये 1240 अपॉन 620 डबल है उसका, है ना? यस सर। तो बताओ ये कौन सी ट्रांजिशन में आ रहा है डेल्टा ई वाला? डी। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे पकड़नी है ट्रांजिशन आपको। पास में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या होगा? दिस करस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन डी। लिखो दिस करस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन डी। यहाँ पे ऐसे कर देना जिससे कि लगे कि हाँ आपने अप्रोक्सीमेट किया है। दिस करस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन डी। चलो एक और करते हैं सही। एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द फिगर शोज energy level diagram of a hypothetical atom तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दे रखे हैं एनर्जी लेवल्स। दिस इज 0 EV, this is -2 EV, -4.5 EV, and this one is -10 EV। एंड यहाँ पे दिखा रखी है ट्रांजिशंस। किसकी ट्रांजिशंस होती हैं ये? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस हैं ये। yes. देख लेना ध्यान से कि एरो हम कहाँ से कहाँ मार्क कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस किस टॉपिक के होते हैं? बोर्स बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। और इन क्वेश्चंस में क्या निकालने के लिए बोलता है नॉर्मली? ट्रांजिशन। डेल्टा। ट्रांजिशन आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है जनरली, यस जिसके लिए सर। हमको डेल्टा ही निकालना पड़ता है। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन which corresponds to emission of photon। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फोटोन ही होता है ना? यस सर। सर। which corresponds to emission of photon of wavelength 275 नैनोमीटर। 275 नैनोमीटर दिखता है हमको? नो सर। नो नहीं, सर। क्योंकि ये 400 से कम है, इस वजह से हमको दिखेगा नहीं। तो ये बेसिकली विजिबल लाइट नहीं है। ओके, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर ये बताओ कि ये जो ट्रांजिशन ए है, ट्रांजिशन ए के करस्पॉन्डिंग डेल्टा ई कितना है? 2 EV। 2 ठीक है, तो ट्रांजिशन ए के करस्पॉन्डिंग आप कह रहे हो कि डेल्टा ई कितना है? 0 -2, तो 2 EV। ठीक है, ट्रांजिशन बी के करस्पॉन्डिंग क्या सीन है? 4.5 EV 4.5 EV। 4.5 -4.5 यानी कि 4.5 EV। ट्रांजिशन सी में क्या आ रहा है? 2.5 EV। ठीक है,
-2 माइनस 4.5 यानी कि 2.5 eV। ठीक है, और ट्रांजिशन डी में कितना है? 5.5 नहीं है? 2 है ना 8 है ना? 8 8 eV। ट्रांजिशन डी, ये ट्रांजिशन किसकी है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की है। चैप्टर का नाम क्या है? एटम्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ओके। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यूजिंग Using Bohr's third postulate. third postulate. Yes, using Bohr's third postulate. What is the formula of Bohr's third postulate? Delta E equal to hc by lambda. H by lambda. This by lambda. Very good. And क्या ये बात साफ है कि h का यूनिट क्या होता है? जूल सेकंड। इसका होता है मीटर पर सेकंड, इसका होगा मीटर। तो यानी कि यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी हमको। तो इसको ऐसे करते हैं, डेल्टा ई, ये बेसिकली देखो ऐसे क्या करते हैं, ये आएगा इन जूल्स, है ना? यस सर। और फिर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे छोटे ई से डिवाइड, यानी कि इलेक्ट्रॉन के 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई लैम्डा इन ईवी। क्लियर है? Yes sir. यस सर। ठीक है, ये क्या किया हमने? हमने ई से डिवाइड किया जिससे कि हमारा एनर्जी क्या से क्या हो जाए? जूल से ईवी में आ जाए। ओके, ग्रेट। अब बताओ हमने किस चीज का वैल्यू याद कर रखा है? hc by E. कितना होता है? 1242 1242 into 10 raised to the power -9. -9। तो इतना क्लासी है ना ये, कि नीचे वाले नैनोमीटर को काटता है डिट्टो, है ना? लैम्डा कितना है? लैम्डा कितना रखा है वो? 275 यस सर। नैनोमीटर, Yes, sir. यानी कि लैम्डा रहेगा 275 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ऐसा सेटिंग कर रखा है हमने यहाँ पर कि हमारी कैलकुलेशंस अचानक से ही खत्म हो जाती हैं। नाउ दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये कट गया, ये कट गया। सो दिस इज, इसको मान लो आप 1240 275 काट दो इसको 25 से। किससे काटोगे इसको? 5 से काट दो। तो 5 5 जा, और 5 5 जा, 5 2 जा, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? तो 4.5 वाले से कॉरेस्पॉन्ड करेगा आ रहा है, बढ़िया। अप्रॉक्स। सही आ रहा है। इलेवन 5 जा, इसको काटना पड़ेगा जबरदस्ती। 11 5 जा, और 11 2 जा, और 11 2 जा, तो आ गया 4.5 समथिंग। तो दिस इज नियरली 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में आया था? 4. B. ट्रांजिशन बी में। तो इससे हमने नैरो डाउन कर लिया कि ये जो हमारा 275 नैनोमीटर है ये निकलेगा ट्रांजिशन बी के करस्पॉन्डिंग। तो बोलोगे कि दिस करस्पॉन्ड्स टू, अब देखो इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा यार। दिस करस्पॉन्ड्स टू, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते 4.5 डायरेक्टली बीच वाला कैलकुलेशन। लिख सकते हैं एब्सोल्युटली कैन डू इट। दिस करस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन क्या आया था? बी। बी। ठीक है, ग्रेट। यार हमने ये जो 2 क्वेश्चंस किए किस टॉपिक के थे? बोर्स तो थर्ड Bohr's पोस्टुलेट। third थर्ड postulate. पोस्टुलेट के। Third postulate. हाँ जी, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट के क्वेश्चंस कर लिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोर्स थर्ड पोस्टुलेट अगेन? Delta E equal to hc by lambda. By Or lambda. hc. अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है, गेन करता है? Sir, energy lose करता है. एनर्जी लूज करता है, किस फॉर्म में? EM radiation. ईएम रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, ओके। अब देखो जरा आगे, तो लिखो वी नो दैट बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, Bohr's third postulate. What is the formula again? Delta E equal to hc by lambda. Equal to hc by lambda. Correct. What exactly is delta E? This is the E high minus E high minus E low. Minus E low. E high minus E low.
लो इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये हाई क्या है? व्हाट इज दिस ई हाई? दिस इज द Energy at the higher level. Let's draw a diagram here. This is E high and this is E low. इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? हाई से लो, High से low. ठीक है। और क्या निकल रहा है बाहर? EM EM radiation. radiation. चलो अच्छा है, समझ में तो आ गया ऐसा लग रहा है मेरे को। और इसके अंदर एक काम करते हैं, हम लिखते हैं इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा n हाई, इसका हो जाएगा n लो। बात समझ में आ रही है? N low. Yes. भाई करस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑर्बिट देयर इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना, ऑर्बिट नंबर ना, विल। Yes. यस Yes, sir. ठीक है। अब बात यहाँ पर ये है कि हमने आज पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर EV, ऐसा कुछ याद है? Yes. Yes, sir. इसी की मदद से हमने n डाल के वो 4 वैल्यूज याद की थी, ठीक है ना। यस तो सर Yes. इसको यूज करते हैं, तो E हाई क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा -13.6 अपॉन n हाई स्क्वायर, Yes, sir. Yes. -13.6 अपॉन n हाई स्क्वायर, -13.6 अपॉन क्या? N low square. Low square. बिल्कुल, इज इक्वल टू HC by lambda. Equal lambda. करेक्ट hc बाय। अब देखो यहाँ पंगा क्या है, यहाँ पंगा ये है कि ये तो था जूल्स में कहानी थी, राइट। Yes, Yes. sir. ये जूल्स में क्यों आती है? क्योंकि h की यूनिट होती है ना जूल सेकंड, इस वजह से जूल में आता है ये। अब इसको हम कर देंगे e से डिवाइड तो सही हो जाएगा, तो यानी कि e लैम्डा कर देंगे तो आ जाएगा किसमें? Electron. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमने क्यों किया कन्वर्ट? क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में की कहानी है ना, देखो सारी की सारी, देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है। Yes. Yes, Sir. sir. यूनिट्स की कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है यहाँ पर, तो हमने जो है ई से डिवाइड कर दिया। ओके, अब बताओ मेरे को कि लेफ्ट साइड में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? Minus Yes, sir. 13.6. Minus 13. ठीक है, 13.6 ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? Minus Upon- नहीं हाँ Positive 1 ही नहीं upon पहले। n low square minus 1 upon n high square. इज इक्वल टू क्या? HC by E lambda. ठीक है। यहाँ से हम सकते हैं कि ये जो है ना यार एच सी अपॉन ई, इसको इधर ले आते हैं, कुछ करना है, क्रॉस में करना है, तो आएगा 13.6 ई अपॉन एच सी इंटू 1 अपॉन क्या? n लो स्क्वायर Low square. माइनस 1 अपॉन n हाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 1 अपॉन लैम्डा, ठीक Lambda. है। Yes. Sir. ये हम कौन से वाले फॉर्मूले पे वर्कआउट कर रहे हैं अभी? Bohr's third postulate. Exactly. हम बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट पे ही आगे काम कर रहे हैं। तो बताओ राइट हैंड साइड में क्या क्या लिखा हुआ है? 1 upon lambda. upon lambda. 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसे ऐसे लिखो, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 ई अपॉन एच सी, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन एन एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एच स्क्वायर। ये एल मतलब लो और एच मतलब हाई, ठीक है। Yes. Sir. अच्छा, अब ये जो है क्या ये कांस्टेंट है या इसमें कोई वेरिएबल भी है? Constant है. कांस्टेंट ही है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड कांस्टेंट्स, यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट्स हैं? एक तो ई कांस्टेंट है, एक एच कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट ही है। वी गेट 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है एक नया कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर 1 अपॉन एन एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एच स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एक और फॉर्मूला, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू क्या? 1 अपॉन एन एल स्क्वायर। 1 upon n square 1 upon n square. minus 1 upon n square. So this formula is very important for numericals of this chapter.
1 upon lambda is equal to capital R 1 upon n L square n low square minus 1 upon n high square. लिख लिया? Yes. Yes, sir. ठीक है. इसके अंदर ये जो R है इसे बोलते हैं Rydberg constant. This is called Rydberg. आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका मोस्टली. Yes, sir. Yes, sir. Called Rydberg's constant. This is called Rydberg's constant. What is capital R? Rydberg's constant. Rydberg's constant. इसकी वैल्यू देखो कितनी होती है. इसकी वैल्यू होती है 1 करोड़. 1 करोड़. 10 की पावर 7. लेकिन इसमें एक डेसिमल पार्ट भी है. इसका डेसिमल पार्ट होता है 1.09 into 10 की पावर 7. ठीक है. Yes, sir. So what is the unit? What is the value of Rydberg constant? 1.09 10 to the power 7. It is quite large. बहुत बड़ा नंबर है ये. It's a very big number. अच्छा. दादा इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर. मीटर. है ना, इसकी यूनिट मीटर होगी. और इस ब्रैकेट की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि नंबर्स हैं यहाँ पे. Yes, sir. ये तो सिर्फ नंबर्स है ना, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी. तो क्या हम बोलते हैं कि इसकी यूनिट होगी मीटर इनवर्स. Yes, sir. So the unit of Rydberg's constant is per meter, meter inverse. ठीक है. Yes, sir. ओके. और इस टर्म को हम बोलते हैं वेव नंबर. 1 upon lambda को बोलते हैं वेव नंबर. अगर मान लो कि हम इसके अंदर NL को कर दें 1 के बराबर और NH को कर दें 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ कूद रहा है. इलेक्ट्रॉन 2 से 1 जा रहा है, या 3 से 1 जा रहा है, या 4 से 1 जा रहा है, या 5 से 1 जा रहा है, या सो एंड सो ऑन. राइट. Yes, sir. ठीक है. और निकालते हैं इसके केस में लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा. तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल आर. हमने किसको फिक्स कर रखा है? NL को. तो Yes, यहाँ sir. पर तो आपके पास ये आ जाएगा फॉर्मूला. 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में हमने NL को क्योंकि फिक्स कर रखा है तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ NH इज गोइंग फ्रॉम 2, 3, 4, 5 एंड सो. तो इलेक्ट्रॉन की जंप लग रही है 2 से 1 या 3 से 1, 4 से 1 या 5 से 1, यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? 1. अब ऐसा देखा गया कि भाई जब ये 2 से 1 जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 जाएगा तो कोई लैम्डा निकलेगा, है ना, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा. Yes. Yes, sir. लैम्डा 1 बोल दिया. अगर या लैम्डा 21 बोल दो, लैम्डा 21. अगर ये 3 से 1 गया तो लैम्डा 31 बोल दो. अगर 4 से 1 गया, जा कहाँ रहा है अल्टीमेटली? 1. 1. ये सारे के सारे लैम्डास को जब ऑब्जर्व किया गया ना, तो ये पता लगा कि ये सारे के सारे आ रहे हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर. किसके अंदर? Ultraviolet. Ultraviolet तो region. आपको एक बात याद करनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूदेगा, कहां पर? 1 पर. कहीं से, तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी? अल्ट्रावायलेट. Ultraviolet. ये एक्सपेरिमेंटली देख लिया गया है, ये याद कर लो इसको. और इन सबको इकट्ठा करके बोला गया लाइमन सीरीज. सुना होगा आप लोगों ने. Yes, sir. Yes, sir. तो लाइमन सीरीज किसे बोलते हैं? लाइमन सीरीज होती है वो ट्रांजिशंस जो कि होती है ऊपर वाले से 1 की तरफ. 1 पे गिरता है इलेक्ट्रॉन, और उस प्रोसेस में जो लैम्डास निकलते हैं दे ऑल लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन. कैन वी सी देम? नो, वी कैन नॉट सी देम. ठीक है. Sir, Yes. ultraviolet sir visible region में है ना? नहीं नहीं, So- अल्ट्रावायलेट तो अलग है बिल्कुल. अच्छा सर. हाँ ठीक है. ऐसा लगता है बच्चों को हाँ. कि अल्ट्रावायलेट हमें दिखाई पड़ता है. अल्ट्रावायलेट थोड़ा दिखाई पड़ता है, हमें दिखाई पड़ता है सिर्फ 400 से 700 वाला बैंड. उसके बियॉन्ड हमको दिखाई नहीं पड़ता. अल्ट्रावायलेट दिखाई पड़ता है क्या हमको? No, No, sir. sir. No, sir. नहीं दिखाई पड़ता भाई, नहीं, टेंशन मत लो. हमें सिर्फ विजिबल लाइट ही दिखता है और उसके आगे पीछे. ठीक है, माना कि थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग है, लेकिन अल्ट्रावायलेट हमें दिखाई नहीं पड़ता. यही मान के चलना है हमको.
ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर NL को 1 पुट किया, एक काम करते हैं, इस बार हम NL को 2 पुट करते हैं। तो अगर हमने NL को पुट किया 2 और N हाई को क्या लेंगे, या तो 3 या 4 या 5 या इस तरीके से, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ कूद रहा है, या तो 3 से 2 कूद रहा है, 3 से 2, या 4 4 से से 2 2, कूद 5 रहा से है, 2, 7। या 5 से 2 कूद रहा है। ठीक है, देखो 2 पे कूदने के बाद क्या वो रुकेगा नहीं, वो तब भी अनस्टेबल है, तो वो फिर से नीचे जाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 वाली ट्रांजिशन की, जब वो किसी हायर एनर्जी स्टेट से 2 पे कूदता है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जब वो कूदा 3 से कहाँ 2, तो लैम्डा 32, ठीक है। यस यस सर। जब वो कूदा, वो कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ कूदा, 4 से 2, तो लैम्डा 42। अब वो कूदा कहाँ से कहाँ, 5 से 2, तो लैम्डा 52। इन 52 लैम्डास को जब देखा गया तो पता चला ये हमको दिख रही है, ये हमको दिख रही होती है। तो दिस इज द विजिबल लाइट, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन कूदेगा 2 पर, कहीं ऊपर से कूदेगा 2 पर, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी वो हमको दिखाई पड़ेगी। और इसे बोलते हैं बार्मर सीरीज, BALMER, बार्मर सीरीज, ठीक है। नाम सुना होगा आपने इसका यस सर। केमिस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली हमने कौन कौन सी सीरीज देख ली। लाइमन और बामन। बिल्कुल, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि लाइमन होता है यूवी और बार्मर क्या होता है, विजिबल लाइट, ठीक है। यस सर। अब बताओ इसके बाद NL को क्या पुट करोगे, 3। 3। तो अब तो बस गेम खेलते रहो इस तरीके से, टाइम पास वाला। तो NL इक्वल टू 3, NH क्या होगा, 4 5 6 डॉट डॉट। इस बार कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3। ठीक है। तो अगर कूदेगा 4 से 3, तो लैम्डा क्या लेंगे, 43। 43। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि लैम्डा जो है 4 से 3 वाली ट्रांजिशन की बात हो रही है। अलग अलग लैम्डास निकलेंगे ना हर ट्रांजिशन में, ये तो क्लियर है ना। यस सर। अलग अलग लैम्डास क्यों निकलेंगे, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस अलग अलग होगा, इस वजह से। लैम्डा 53, लैम्डा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जाएगा 6 से 3, यानी कि लैम्डा 63। और इन सबको जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली, तो ये पाया गया कि ये इंफ्रारेड में लाई करते हैं। किसमें, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड Infrared. रीजन के अंदर लाई करते हैं। लाइमन बामर पास्चन, नाम सुना होगा पास्चन का, Yes, sir. पास्चन, लाइमन बामर पास्चन, पता है आगे ब्रैकेट यस सर। के बाद फंड, पी Yes. फंड, ठीक है। तो कर लेते हैं, NL इक्वल टू 4 डाल लेते हैं अब। तो NL इक्वल टू 4 डालोगे, NH को क्या लोगे, 5 5 6 5 and 2। 7 so तो इस बार जो है विदाउट एनी दिस थिंग बोलते हैं कि 5 से 4 कूदेगा, 6 से 4 कूदेगा, 7 से 4 कूदेगा। कौन कूद रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन कूद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकलेगा ये क्या होगा, ये भी इंफ्रारेड ही है, ये भी क्या है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, BRCKE ब्रैकेट सीरीज। नेक्स्ट क्या लोगे, बताओ बताओ फटाफट। NL equal to 5 energy equal to 6 7 8 9 ठीक है, तो यहाँ पे कूदेगा कहाँ से कहाँ, 6 से 5, 6 से 5 7 से 5 8 से 5 से 5, और ये जाएगा आपके पास, ये कौन सा रीजन है, ये भी इंफ्रारेड ही है। तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है, बार बार इंफ्रारेड आ रहा है। यस सर। तो ये तो हमने किया ही नहीं था एक्सपेक्ट कि बार बार इंफ्रारेड आ जाएगा। तो मेरे को ये बताओ कि पहले क्या आया था, पहले आया था अल्ट्रा वायलेट, है ना, विजिबल। तो बताया विजिबल लाइट, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर इंफ्रारेड आने लगा, फिर इंफ्रारेड आने लगा, यानी कि काफ़ी लंबा पट्टा है इसका इंफ्रारेड का, ठीक है। यस सर। तो इसे बोलते हैं नियर इंफ्रारेड, इसे बोलते हैं प्रॉपर इंफ्रारेड, मतलब प्रॉपर बोलते नहीं है, बस इंफ्रारेड बोलते हैं। इसे बोलते हैं फार इंफ्रारेड, यानी कि ये बस खत्म होने वाला है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। यानी कि यहाँ पर हमने एंट्री मारी इंफ्रारेड के अंदर, यहाँ पे हम थॉरली इंफ्रारेड में आ गए, यहाँ पे हम एग्जिट मारने की कगार पे आ गए, ऑन द वर्ज ऑफ एग्जिटिंग द इंफ्रारेड। लाइमन बामर ब्रैकेट, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड, पी पी रहता है इसमें साइलेंट, या बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पी फंड सीरीज या फंड सीरीज, एंड दैट्स इट,
ठीक है, यस सर। यस तो सर। इसका बनाते हैं डायग्राम, इसका बनाते हैं डायग्राम। तो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना, दिस इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो लेट अस ट्राई टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस इन अ नीट डायग्राम. So what we will do is we will mark this as a straight line and call it n equal to 1, n equal to 2. थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना बनाना और ऊपर तक वाइट स्पेस रखना अपने पास. फिर n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, equal to 5, n equal to 6. कल छुट्टी है स्कूल की. यस सर। n equal to 7. और अगर हम बहुत दूर आ गए, किससे बहुत दूर, न्यूक्लियस से, तो इसे आप बोल दो इन्फिनिटी. ये थियोरेटिकल है, यानी कि हम बिल्कुल बाहर आने की कगार पे हैं एटम से. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है. ये क्लियर है? यस सर। ठीक है. n इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, Ground. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन. ओके, अब बताओ मेरे को कि हमने लाइमन में कहाँ पे कुदाया था, अल्टीमेटली कहाँ पे कुदाया था उसको, 1 पे. अरे लाइमन में कहाँ कूदता है, 1 पे कूदता ना. यस सर। 2 से 1, 3 से 1, Yes. 4 से 1, 5 से 1. एरोज थोड़े पतले पतले बनाना, पास पास बनाना, नहीं तो बन नहीं पाएगा डायग्राम ये. हमको बहुत कुछ मार्क करना है इसके अंदर. हमने कहाँ से कहाँ तक मार्क कर दिया, 7 से 1 तक. अब क्या बचा हुआ है, इन्फिनिटी से 1 वाला, थ्योरेटिकल है ये. सो ये देखो ऐसे बना लिया. यस सर। यस सर। ये जो एरोज हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रांजिशंस. ट्रांजिशन ऑफ किसकी ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस. इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ. ठीक है. और ये जो पूरा का पूरा बास्केट है, दिस इंटायर बास्केट, दिस इज द लाइमन सीरीज, राइट? यस सर। Yes, sir. And it is this is infrared, right? No, this is UV. Ultraviolet. Yes, ultraviolet है ये. ध्यान रखना है, लाइमन मतलब अल्ट्रावायलेट. ठीक है. अब जरा देखते हैं बामर. बामर में फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, 2, राइट? तो कहाँ से कहाँ, 3 से 2. हमेशा ऊपर से नीचे आना है, तभी बोर के थर्ड पॉस्टुलेट की बात होती है. बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एक्साइटेशन, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद डी एक्साइटेशन. De-excited. यस. और इसके अंदर 6 से 2. ये हम क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. सुना होगा शायद, Yes, sir. एमिशन स्पेक्ट्रम है ये. तो ये जो पूरा का पूरा बास्केट आया निकल के, ये क्या है, दिस इज बामर सीरीज. आई थिंक ये न्यूक्लियस लिखा हुआ बड़ा हार्ड लग रहा है, बट ठीक है, दैट्स फाइन. ये हो गया आपका बामर सीरीज. और बामर सीरीज ही हमको दिखता है, राइट? यस सर। ये हो गया आपका विजिबल Yes. लाइट, विजिबल लाइट. ठीक है, यानी कि बामर के अंदर आएगा आपका 400 से 700 नैनोमीटर वाला रेंज. इसके बाद कौन सी सीरीज है, फास्ट. आई थिंक अगर आप लोग अपनी कॉपी में इसको बनाओगे लैंडस्केप मोड में तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, आई थिंक, क्योंकि मेरे को खुद लग रहा है कि स्पेस का कंस्ट्रेंट है. पास्ट सो और स्केल का यूज करना. आई नो सम ऑफ यू यूज स्केल, बट सम ऑफ यू आई डोंट नो व्हाट यू यूज. तो स्केल का जरूर यूज करना, बढ़िया बनेगा ये. लाइमन बामर, ये हो गया आपका पास्चन. और पास्चन में क्या, कौन सा रीजन होता है, नियर इंफ्रारेड, Near infrared. सर यानी कि जस्ट एंटर ही किया है. है लेकिन क्या होगा, नियर इंफ्रारेड. नियर इंफ्रारेड. ठीक है. इसके बाद क्या है भाई,
ब्रैकेट। ब्रैकेट वो कौन सा है? वो है इंफ्रारेड वाला। कहाँ से कहाँ कुदाना है? 5 से 4, मतलब 4 तक जाना है। ठीक है। ये हो गया आपका ब्रैकेट सीरीज। ये कौन सा रीजन है? प्रॉपर इंफ्रारेड। प्रॉपर इंफ्रारेड है, एब्सोल्युटली। यानी कि इंफ्रारेड का पट्टा काफी चौड़ा है यहाँ पर। उसके बाद क्या है? फंड। फंड फंड, ठीक है। कहाँ कुदाना है? 65 और इन्फिनिटी से 5, ठीक है। ये हो गया आपका पी फंड सीरीज। और ये कौन सा रीजन है? फार इंफ्रारेड। फार इंफ्रारेड, यानी कि इंफ्रारेड से बस बाहर आने की कगार पे हुआ है। फार इंफ्रारेड। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद लिखवाया तो कुछ है नहीं, है ना? लेकिन अगर आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर, तो एनसीईआरटी बताती है कि अगर कोई ट्रांजिशन हुआ 6 पे, अब 6 वाला ट्रांजिशन टिकता नहीं है, उसका लाइफ टाइम बहुत कम है, क्योंकि 6 भी बहुत अनस्टेबल है। बट अगर वो कभी कभार डिटेक्ट हुआ भी ना, तो उसको भी, मतलब ये हमेशा नहीं आता, इट कम्स वेरी वेरी लेस। तो ये होता है आपका हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री, आई थिंक ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा क्लास 11th में, हम्फ्री। सो दिस इज ऑल। अब हम्फ्री सीरीज कौन सा है? इट इज इंफ्रारेड और माइक्रोवेव की बाउंड्री है एक तरीके से। याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, राइट? Yes, sir. अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम जो है अल्ट्रा वायलेट, जैसे हम बनाते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो वो इस तरीके से बनता है हमारे पास। दिस इज रेडियो एंड देन माइक्रो एंड देन व्हाट डू वी हैव? इंफ्रारेड। ये सब याद है या भूल चुके हो इसे? यस सर, यूवी, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, ठीक है, और एक्सरे, गामा। Gamma. ठीक है, तो बताओ कि जैसे जैसे हम इस डायग्राम को बनाते गए, वैसे वैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे लेफ्ट टू राइट आए हैं, राइट टू लेफ्ट आए हैं? लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट आए हैं, राइट टू लेफ्ट आए हैं, राइट? यस सर, कहाँ से कहाँ हम आए? यूवी से यहाँ तक। ये कौन था? ये था लाइमन का इलाका, Yes, यस sir. ये था बार्मर, Barman. ये था आपका, 3 थे इसके अंदर, नाम आपको पता ही है। तो यहाँ पर इस वाले, ब्रैकेट और फंड। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर था लाइमन, बार्मर, पास्टन, एंड देन Arjun. ब्रैकेट Bracket. प्रॉपर और वाला, fund. और फंड हो गया। ठीक है। और ये जो हमने इतना कुछ बनाया है ऊपर, इसे क्या बोलते हैं? इस पिक्चर को बोलते हैं हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम। तो Yes, इसको, sir. इसका नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर। नहीं, अभी चल रहा है. अभी हाँ, नहीं. यही चल रहा है एग्जैक्टली। तो तो इसका नाम ले लो इस पिक्चर का कि एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम, एटम। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर एग्जाम में आता है बनाने के लिए, मतलब पूछता है कि ड्रॉ एमिशन स्पेक्ट्रम, तो समझ जाना कि ये मांग रहा है। ठीक है, तो इट शुड नॉट टेक यू मोर देन अ मिनट टू ड्रॉ इट क्विकली। ठीक है, अब इसके अंदर बस एक और पॉइंट है, देन वी विल क्लोज फॉर टुडे। इसके अंदर क्या चीज अजीब है, क्या चीज इमेजिनरी है इसके अंदर, इस पूरे डायग्राम के अंदर? ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान से देखो। अब अगर हम बात करते हैं लाइमन सीरीज की, किसकी? लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन या तो जाता है 2 से 1, है ना, और Yes. या फिर जाता है 3 से 1, और या फिर हद से हद जा सकता है इन्फिनिटी से 1, है ना? ये तो है। यस सर, 2 से 1 वाले को बोलते हैं एच अल्फा लाइन। क्या बोलते हैं? एच अल्फा लाइन, H हाँ, तो alpha 2 से 1 वाले का डेडिकेटेड एक नाम दिया गया है एच अल्फा लाइन। 3 से 1 वाले को बोलते हैं एच बीटा लाइन, यानी कि वही आपका जो ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा बीटा गामा, उस तरीके से आपको आगे प्रोग्रेस करना है। एंड इसको बोलते हैं, किसको? इन्फिनिटी से 1 वाले को इसे बोलते हैं लिमिटिंग लाइन, इसे बोलते हैं लिमिट लाइन।
तो कहीं पर भी अगर ये वर्ड आ रहा है लिमिट लाइन की बात हो रही है तो आपको कहाँ से कुदाना है उसको, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से। और सेम टर्मिनोलॉजी बाकी सीरीज में भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बामर सीरीज की, किसकी? बामर सीरीज। बामर सीरीज में कहाँ से कहाँ होती है? पहली वाली 3 से 2, 3 से 2, अगली वाली 4 से 2, 4 से और 2, हद से हद इन्फिनिटी से 2। इन्फिनिटी से 2। तो सेम टर्मिनोलॉजी है। इसे बोलेंगे एच अल्फा लाइन, किसकी? बामर की। इसे बोलेंगे एच बीटा लाइन, किसकी? बामर की। इसे बोलेंगे लिमिट लाइन, किसकी? बामर की। बामर। यानी कि ये एक जेनरिक नॉमेनक्लेचर है which is applicable in all the series that we have seen above। ठीक है? यस सर। यस सर। Okay. तो इस तरीके से हमारा चैप्टर एटम्स भी हो गया फिनिश। इन द नेक्स्ट क्लास which is on Sunday we will start off with nuclei। and nuclei is one of those chapters जिसके अंदर substantial reduction हुआ है आपके सीबीएसई कोरोना पैंडेमिक के चक्कर में। तो it has got shrunk to bare minimum। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर लगेगा आपको। एंड देन वी विल डू सेमीकंडक्टर्स। ठीक है? ओके सर। Okay guys, good night, thanks, bye bye, थैंक यू सर। थैंक यू सर। thank you, Good bye night. bye, Thank you, sir. you're welcome, bye bye।